کہ آپ کو فیس بک کے اوپر ایسی تصویریں ملیں گی ٹوکے اٹھائے ہوئے ان کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں یار, یہ ٹوکے میدان جنگ میں کافروں کے خلاف چلتے نا تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ٹوکے واقعی کوئی اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی میدان جنگ میں, عام حالت میں کافر کو بھی آپ قتل کر سکتے. یہ لبیک یا رسول اللہ لکھ کے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ ٹوکا چلنا کس کے اوپر ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. آپ اونچی امین کے رفع الیدین کریں مسجد میں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی نان مسلم سے, خطرہ ہے تو مسلمان سے, اس مسلمان سے جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. جی حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, قادیانی فقہ میں حنفی ہے, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس بخاری اور مسلم میں جو لکھا ہوا ہے طریقہ اہل سنت کے ہاں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا, ہم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. لو سمو, وہ قادیانیوں کا جو سو کالڈ خلیفہ ہے نا, اس کی تو ویڈیو موجود ہے کہ ہم فقہ میں حنفی ہیں. You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless you find reasons to disagree with him, you will generally follow the fiqh Hanafiya. To investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Mu'tazili. ہم حق بجانے میں پھر یہ کہنے میں کہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی کہتے ہیں جنہیں سب سخت بات کرتے ہیں. واہ واہ, تو اسی ساڈے اسٹوڈنٹ رفع الیدین نہ کرن دیو اور کہو کہ یہ قادیانی ہو جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پارٹی نسل تمہیں. پھر تمہارا جو غوث پاک تھا جس کا ایک دھوبی تھا, جو امداد اللہ بہادر مکی بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ ابا, جو اس دھوبی کا دفاع کرتا رہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تمہارے غوث پاک اور ہمارے عبدالقادر جیلانی المتوفی 561 ہجری, انہوں نے بنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. نہیں جی وہ حنبلی تھے, تو کیوں حنفی ہو پھر؟ ویسے انہوں نے لکھا میں حنبلی ہوں. تمہارے پیر کو زیادہ نماز آتی تھی کہ تمہیں آتی ہے؟ تم تو کہتے ہو یہ مکھیاں مارتے. آج کل ویسے نیا وجہ نکالا کہ سارے طریقے ثابت ہیں. نسل تو ہے, جھوٹے ہو. کل تک کہتے سو بت رکھ کے اندر ہوں, کہتے سارے طریقے ثابت ہیں. اصل وجدہ اپنی تم کٹی ہوئی ہے تو چاہتے سب کی کاٹ دیں. کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. کھورا اپنے کار نکلا ہے. جن کی نماز قادیانیوں والی ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھ کے مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے؟ اب مجھے بتائیں کوئی نان مسلم یہ دیکھے پوسٹر تو وہ اسلام قبول کرے گا؟ آپ اسے لاکھ بتاتے رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو کہے گا ٹوکے ہوتے دلیل ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے, کالجز کے, ان کے ٹیچرز نمک حرام ٹیچرز, گورنمنٹ نے اس کام کے لیے انہیں نہیں رکھا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرے لگوا رہے ہیں گستاخ رسول کی ہے کہ سزا سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے, کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے, اس کو کاٹ کے رکھے. یہ سرکار نے فرمایا. نہ رسول اللہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. لے جا اپنے اندر رکھو کہ جہاں بندہ بھی سرکار کے بارے میں کرے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرے گا, تو انہیں ایک ہی حال ہے کہ عالم منصب نبی یا ہر بچہ اسلام میں یاد رہے حدیث مبارک ہے. سرکار کی حدیث ہے کہ یہ منصب نبی یا منصب نبی یا اسی کا نام فاقتلوہ منصب نبی یا منصب نبی یا. ہم نے کیا کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں. من سب کا نبی سب کا نبی گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. ماشاءاللہ, یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے. ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے سے بات کرنے کی کوشش کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر. کب سے موجود ہو دربے کے اندر؟ ہفتہ ہو گیا. ہاں جی. منصب کا نبی منصب کا نبی فقلو ہو کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے کے بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. فقلو دین جاوے اس سے گستاخ دو, رات تک نیند نہ آئے. گستاخ کے نبی کی ایک سزا, سرطان سے جدا, سرطان سے جدا, گستاخ کے نبی کی ایک سزا. سرطان سے جدا. منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا. اور گستاخ رسول پتہ ہے کون؟ دوسرے فرقے والا. اور ان کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں لکڑی کی. منصب نبی فقتلوہ, جعلی جھوٹی حدیث. سرکار ضعیف نہیں, جھوٹی حدیث جے. وہ بابا حاتم رضوی پڑھا گیا نا, انہوں نے پوچھا لکھی کی تھے دسو ذرا حوالہ دسو. اے میں 6 کتابیں تھی, آئی کوئی نہیں جے. اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں, نہ بخاری میں, نہ مسلم میں, نہ ابو داؤد میں, نہ ترمذی میں, نہ نسائی میں, نہ ابن ماجہ میں. دور کی کتاب میں جا کے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے. اور مجموع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حیثمی, انہوں نے صحیح, ضعیف اور موضوع کے حکم لگائے ہیں. اور یہ بریلوی میں خود مجموع الزوائد چھاپ دی حدیث کی کتاب. اس میں انہوں نے یہ حدیث لے کر نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے, اور امام نسائی کے حوالے سے لکھا کہ امام نسائی اس کے جو مرکزی راوی جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد, اس کو کذاب, جھوٹا کہتے تھے. اور ایک کڑی ہوئی حدیث ہے منصب نبی فقتلوہ, کڑی ہوئی حدیث, جھوٹی حدیث. اندازہ کریں اس پر ترا یہ سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے اوپر غصہ آیا.
तो वहां एक दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन इजाजत दे मैं इसको कत्ल कर दूं। वो कोई खाम खाए होते हैं बात खड़पैंची करने वाले भी। तो सैयदना अबू बकर ने कहा नहीं यार, मतलब कत्ल क्यों कर देगा ऐसे तू? उसका मेरा इख्तिलाफ राय, कत्ल कहां से बीच में आ गया? बाद में जब ये खुतबा खत्म हुआ तो हज़रत अबू बकर उसे साइड पे लेके गए और कहा कि ये जो तूने मजमे में बात की कि मैं उसे कत्ल कर दूं, अगर मैं वाकई तुझे कह देता झूठी मूठी भी कि मार दे तो तूने मार देना था। उन्होंने कहा हज़रत मैं मार देना सी, अंदाजा करें। तो फिर सैयदना अबू बकर ने उसे डांटा। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए यह शाया नहीं है कि वो किसी को कत्ल करवाए। ये सिर्फ नबी का हक था कि वो किसी को वजह बताए बगैर भी हुक्म फरमा सकते थे कि इसे कत्ल कर दो, क्योंकि उन्हें वही की ताईद हासिल थी। उनके बाद किसी को यह राइट नहीं है कि उसे कत्ल किया जाए, खा वो हज़रत अबू बकर के साथ भी कोई मसला रखता हो। ये खुद हज़रत अबू बकर कह रहे हैं। अब मुझे बताएंगे तो जली आशिकाने साहबा बने हुए हैं, इनसे जरा पूछें। हज़रत अबू बकर तो खुद कह रहे हैं कि गुस्ताख को कत्ल नहीं करना, मेरा गुस्ताख हो मेरे सामने बैठा हो। तुम 14 साल बाद जो है वो सऊदीया की फंडिंग के ऊपर तमाशा लगा के यहां बैठे हुए हो, टॉयलेट्स में शिया काफिर लिखे। इस हदीस के साथ ही इमाम अबू दाऊद ने अपने उस्ताद अहमद बिन हंबल के कमेंट्स लिखे हैं कि अहमद बिन हंबल कहते हैं कि 3 वजूहात की बिना पे ही किसी को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, कोई शख्स मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ जाए। नंबर 2, शादीशुदा जानी, यानी वो बदकारी कर बैठा है। और नंबर 3, कत्ल के बदले कत्ल, यानी अगर किसी ने नाहक किसी को कत्ल किया उसके बदले में उसे कत्ल किया जाएगा। उनका पास ये 3 वजूहात है, इनकी बिना पे आप कत्ल कर सकते हैं, चौथी कोई वजह नहीं है। और फिर अहमद बिन ने साथ कहा कि हज़रत अबू बकर के कौल का मकसद यही था कि सिर्फ नबी इस्लाम हुक्म दे सकते हैं इन 3 वजूहात को छोड़कर भी किसी के हक में कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बाकी आम मुसलमान खा वो हज़रत अबू बकर क्यों ना हो, 3 मौकों के अलावा किसी के लिए कत्ल का हुक्म नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, इन्होंने जो गुस्ताखी रसूल की सजा निकाली है, वो जो ऑडियो लीक हुई थी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, वो बिल्कुल ठीक हुई थी। इसी अबू दाऊद और नसाई के अंदर वो हदीस है जो ये लिए फिरते हैं, 4 लोगों को खिलाफे काबा में भी पाओ तो कत्ल कर दो। वो 4 लोगों को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वो अज़ाब इस्तिसाल का हिस्सा था जो नबी का इनकार करने के ऊपर आता है। वो ये नहीं है कि जो बंदी है तो कत्ल कर दो, बरेलवी है तो छोड़ दो। इनके तो कत्ल का म्यार यही है ना, वो तो चीज ही कुछ और थी। हदीसें उठाते हैं, उसमें खुद से रंग भरते हैं और जड़ निकालते हैं। वो जी बुखारी मुस्लिम हदीस है, काब बिन अशरफ को कत्ल करवाया था नबी इस्लाम ने। जी काब बिन अशरफ वो यहूदी था जो मुसलसल मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा था, और मुसलमानों की और यहूदियों की एक कोल्ड वार जारी थी, उसमें उनके सरगना को नबी इस्लाम ने कत्ल करवाया। नहीं, वो गुस्ताखे रसूल था, और गुस्ताखे रसूल तो सारे यहूदी थे। अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन, अंदर से यहूदी ऊपर से मुसलमान, क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं था? उसे क्यों नहीं कत्ल करवाया अल्लाह के नबी ने? लो सामो, उल्टा बुखारी मुस्लिम में आता है जनाजा खुद पढ़ाया, लोहा पे दहन डाला, कुर्ता मुबारक कफन के लिए दिया। फिर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की, अल्लाह ताला पहले नहीं कर सकता था कि आप इनके लिए 70 दफा भी मफरत करें, हम इनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, आंदा आपने किसी मुनाफिक की कब्र पे खड़े नहीं होना, ना उसके लिए दुआ करनी है। लेकिन नबी इस्लाम की जिंदगी में उसकी तकलीफ की वजह से तमाम सहाबा को पता चल गया था ये मुनाफिक है। बुखारी में आता है हज़रत उमर ने कई दफा इजाजत मांगी कि या रसूल अल्लाह इजाजत दे, इसका गला काट दूं मैं। आपने फरमाया छोड़ दो, लोग कहेंगे अपने साथियों को कत्ल करवाता है। उससे बड़ा तो कोई गुस्ताखे रसूल नहीं था ना। तो दिक्कत नजर से चीजों को देखा जाता है भाई, इस तरह नहीं होता। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, एक बदरी साहबी था इब्न अबी बलता, उसने नबी इस्लाम की मुखबरी कर दी, मुशरिकीन अरब को बताया कि अनकरीब नबी इस्लाम मक्के पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो ये जो मैंने हुजूर का राज लीक किया ना, इसके बदले में तुमने मेरी जो वहां पे जायदाद है, एसेट्स हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया। नबी इस्लाम ने मौला अली को भेजा और कहा कि फलां काफिले में एक औरत है, उसके पास वो खत मौजूद है, वो अहले मक्का तक नहीं पहुंचना चाहिए। मौला अली पीछे पहुंच गए, उस औरत को पकड़ लिया, तलाशी दिलवाई गई, खत नहीं निकल रहा। सैयदना अली ने कहा कि मुझे तेरे कपड़े भी उतरवाने पड़े ना, उतरवाऊंगा, तेरे पास वो खत है, क्योंकि जिस शख्स ने मुझे तेरी तरफ भेजा ना वो झूठा है और ना वो हस्ती झूठी है जिसने उसे खबर दी है, यानी अल्लाह और उसका रसूल झूठा नहीं हो सकते। फिर उसने अपना जूड़ा खोला, उसमें से वो खत निकाला। अब वो खत नबी इस्लाम की बरगाह में पहुंचा, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दे, इसका गला काट दूं मैं। जिसने नबी के साथ गद्दारी की, बिल्कुल सही फैसला किया हजरत उमर ने, लेकिन हजरत उमर का ताल्लुक टीएलपी से नहीं था, इजाजत ली। आपने फरमाया उमर छोड़ दो, बदरी साहब की अगली पिछली गलतियां अल्लाह ताला ने माफ कर दी हैं। यानी इसने जो कुछ किया, अगरचे की गद्दारी, लेकिन दुनिया से मगलूब होकर। अब ये फैसला आज कोई नहीं कर सकता, उस जमाने में तो नबी इस्लाम को वही की ताईद हासिल थी। फिर सूरह मुमतहिना की आयत नाजिल हुई इब्न अबी बलता के बारे में कि अल्लाह उसके रसूल से बढ़कर किसी को आप दोस्त यार नहीं रख सकते। इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने एक चैप्टर की हेडिंग में इस हदीस को लेकर एक शरई मसला बयान किया है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान बदरी साहबी को भी अपने इल्म की बुनियाद पर मुनाफिक कह ले, हजरत उमर ने कहा था इजाजत है मैं इस मुनाफिक का गला काट दूं, तो उस पर फतवा नहीं लौटेगा। यानी हजरत उमर ने जो एक साहबी को मुनाफिक और काफिर कह दिया, उन पर फतवा नहीं लौटेगा, क्योंकि उन्होंने दलाइल की बुनियाद पर यह समझा। यह मसला इमाम बुखारी ने अखज़ किया है। इसी की बुनियाद पर मैंने कहा था कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में भी अगर कोई शख्स किसी बदरी साहबी को काफिर कहता है अपने इल्म की बुनियाद पर, जो उस तक नॉलेज पहुंचा, तो वो काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा। ये इमाम बुखारी ने नकल किया है। जब मैंने मसला बयान किया तो जो इंडिया से मेरे खिलाफ फतवा निकला कि इसने कहा कि अगर आज कोई हजरत अबू बकर को काफिर कहते तो काफिर नहीं होगा। जी बिल्कुल, हजरत अबू बकर के अपने जमाने में भी, नबी इस्लाम के जमाने में भी अगर कोई काम करे, किसने किया? हजरत उमर ने किया। लो सामो,
जान लो, तुम लोगों को फिक्र भी मैंने पढ़ानी है, बुखारी मुस्लिम भी मैंने पढ़ानी है। ये इमाम बुखारी को कह रहे हो? ये इमाम बुखारी ने लिखा है कि हज़रत उमर काफिर इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर एक सहाबी को काफिर कहा था, बदनीति की वजह से नहीं कहा था। इस तरह आज भी अगर किसी को अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर किसी शख्स के बारे में मुगालता लग गया तो आप इल्मी इस्लाह करें, बाकी वो और उसका रब का मामला है। इस्लाम से निकालने के लिए जब तक अल्लाह रसूल आखिरत खत्म नबूवत का कोई इनकार नहीं करता ना, वो बड़े से बड़ा भी कुछ जुर्म करता है ना किसी और हस्ती से मुतालिक, वो मुसलमान ही रहेगा। हाँ, गुमराह हो सकता है, बिदती हो सकता है, जन्मी हो सकता है, काफिर नहीं होगा। ये दिक्कत नजर से मामला को देखा जाता है। ये फौरन बगैर टिकट के चल पड़ते हैं, और इंजीनियर साहब ने क्या कहता हूं, इंजीनियर साहब अभी तो कुछ नहीं समझते, चाहे लो इंजीनियर साहब ने नहीं क्या बुखारी से लिखा है, उस दिन 10 साल गया। और जो बंदे ने फतवा निकाला था, मैं उस फतवे ने जो की थी है ना, और फतवा तो मर गया। फिर उस बात कोई सामने नहीं आता, जो भी हमारे गाला करता है जाके कभी सुनना नहीं इंजीनियर को। जवाब कोई भी नहीं, किसी बात का जवाब नहीं। जवाब यह है कि इन्हें अहले सुन्नत के मनहज से भागना होगा। अगर ये कुरान बुखारी मुस्लिम को मानते हैं तो जो हम बयान कर रहे हैं वो तो लिखा हुआ है, तुम्हारी सारी कहानियां तुम्हारे बाबू ने तुम्हें पढ़ाई है, वो कहीं पर नहीं लिखी, नहीं खुद बनाई नहीं है, खुद साफ्त है, झूठ के ऊपर मबनी है। इसलिए ऑडियो लीक्स होती है तो कुछ और बात निकलती है। जब अपना मुफ्ती गुस्ताखी करता है तो कहते हैं तौबा कबूल है, जब कोई और करता है तो कहते हैं नहीं, तौबा तो अल्लाह की बारगाह में है, दुनिया में तो सजा एस्टैब्लिश होगी। तमाशा बनाया है इन्होंने, धोखे में रखा हुआ है आप लोगों को। ना ये दीन के है और ना ये दुनिया के है, ये सिर्फ चंदे के हैं। दुनिया में बंदा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलता है, वो कोई नहीं। इनको चंदा चाहिए, झूठ बोलना पड़े बोलेंगे आपके साथ। इस तरीके से आपको मुख्तलिफ चीजें बता देंगे, हालांकि उन आयात का, उन अहदीस का कोई लेना देना नहीं है इनके किसी मौकिफ के साथ। इन्होंने खुद साख्ता चीजें अपनी बनाई नहीं। ये टोटल इनके पास चीजें थी जो मैंने आज बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर ली है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कोई इल्मी दलील नहीं मानी, जज्बात के ऊपर चलना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं हमारे पास, हम तो सिर्फ इल्मी दलाइल कर सकते हैं। अब एंड पे मैं जो कुरान हकीम का यूनिवर्सल ट्रुथ है उसे दोबारा से रिपीट कर दूं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 ही इस्तिस्ना है, या तो कत्ल के बदले कत्ल होगा या फसाद फिल अर्द की सजा होगी, कि किसी इंसान को कत्ल किया जा सकता है, वो भी जुडिशरी के थ्रू, आम आदमी नहीं कानून हाथ में ले सकता। इन 2 इस्तिस्ना के अलावा जिसने किसी जान को कत्ल किया, मुसलमान नहीं, एक जान को, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जान का जिक्र है, मुसलमान का जिक्र नहीं है। हत्ता कि सही बुखारी में हदीस है, अगर किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर टैक्स देकर रह रहा था, जिम्मी जिससे मुआहदा था गवर्नमेंट का, उसको अगर कोई कत्ल कर दे मुसलमान, तो वो मुसलमान जन्नत में तो जाना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता जो एक काफिर को ना कत्ल कर दे। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। 50,000 साल का दिन है ना क़यामत का, तो 40 साल की मुसाफत से जन्नत की खुशबू आती होगी। लेकिन ऐसा मुसलमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जिसने एक काफिर को भी ना कत्ल कर दिया, जो मुसलमान मुल्क में रह रहा था टैक्स देकर। यहां देख ले तो इन्हें मजहब के नाम के ऊपर क्या कुछ करते रहते हैं, ना हक करते रहते हैं। हक के साथ भी नहीं कर सकते, वो भी जुडिशरी के बगैर आप नहीं कर सकते। अगर इन लोगों को अभी होश नहीं आई हमारे इदारों को, तो ये मुल्क जहन्नम बना रहेगा। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने ओवरऑल ये रविश इख्तियार की है कि लोगों को माफ करो, अल्लाह ताला तुम्हें अजर देगा। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसमें तुमने माफी की रविश इख्तियार नहीं करनी, अगरचे उसमें इजाजत है सूरत निसा में कि आप मकतूल के वरसा को ब्लड मनी दे सकते हैं अगर वो चाहें तो, आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से। लेकिन अल्लाह ताला ने इसे भी डिस्करेज किया, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। कत्ल के बदले में, कातिल को कत्ल करने में पूरी इंसानियत की जिंदगी छुपी है अक्लमंदो, ताकि तुम बच सको। ये मुमताज कादरी टांगा गया था तो सुकून हुआ, वरना हर कोई मुमताज कादरी, जितने बेरोजगार बच्चों के मां बाप है ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि ये भी मुमताज कादरी बने और मैं भी मजार बना के याशी करा, चंदे पे इकट्ठे करता नहीं को। ये बाजार शुरू हो जाना सी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, क़यामत के दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। सबसे पहले फैसला कत्ल का होना है। जामिया तिर्मिज़ी में और सुनन इब्न माजा में हदीस है, अल्लाह ताला के नजदीक एक मोमिन का कत्ल इससे बढ़कर है कि कोई पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे। पूरी दुनिया में सारी खानकाहें, सारी मसाजिद, सारी बाबरकत जगह, सारी हुर्मत वाली जगह आती हैं, ये सारी बर्बाद कोई कर देना, ये छोटा गुनाह है। एक मोमिन का कत्ल इससे बड़ा गुनाह है। स्पेसिफिकली काबे के बारे में तो जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा में मौजूद है कि एक मोमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा में मौजूद है, क़यामत वाले दिन मकतूल अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह ताला के अर्श के पाए के पास पहुंच जाएगा कि या अल्लाह मुझे आज इंसाफ चाहिए, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। इस हाल में कि उसकी रगों से खून बह रहा होगा, मकतूल ने अपने कातिल को पकड़ा हुआ होगा कि या अल्लाह इसको सजा मिलनी चाहिए। इतना हल्का मामला। सुन्नत अबी दाऊद में हदीस है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला या तो शिर्क को माफ नहीं करेगा या कत्ल नाहक को भी माफ नहीं करेगा। 2 गुनाह ऐसे हैं। वैसे तो कुरान में शिर्क के वाले से आया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा क़यामत के दिन। दुनिया में तौबा कर ले तो माफ है, आखिरत में इसके सिवा जितने गुनाह उनको माफ कर देगा, लेकिन वो भी जिसके लिए चाहेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। कुरान में भी इशारा मौजूद था कि शिर्क के अलावा भी कोई ऐसा गुनाह हो सकता है जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी माफ ना करे, और वो कौन सा गुनाह है? कत्ल नाहक। इसकी जड़ कुरान में है।
सूरत निसा में आया कि जिसने मोमिन को नाहक कत्ल किया उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। लिहाजा कोई ये ना समझे ये अबू दाऊद की हदीस कुरान के खिलाफ है। हमेशा की जहन्नम एक कत्ल नाहक के बदले में सूरत निसा में आया है। लिहाजा ये अबू दाऊद की हदीस बिल्कुल कुरान के मुताबिक है कि ना तो शिर्क माफ होगा और ना कत्ल नाहक। ये इतना बड़ा जुर्म है कि जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, अगर जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर सिर्फ एक मोमिन को कत्ल कर दें, अल्लाह ताला औंधा मुंह करके पूरी कायनात को जहन्नम में फेंक देगा एक मोमिन के बदले में। इससे बढ़कर कोई बात समझाई जा सकती है? इस रवायत की सनद में कलाम है, कुछ मुहद्दिसीन इसे सही कहते हैं, कुछ ज़ईफ, लेकिन यह हदीस बिल्कुल मतन के एतबार से दुरुस्त है, क्योंकि इससे सपोर्टिव बुखारी की वो हदीस है कि सैयदना उमर के दौरे खिलाफत में एक शख्स को नाहक कत्ल किया गया, उसके बदले में हजरत उमर ने 7 बंदों को कत्ल करवाया जो उसके कत्ल में शरीक थे, और फिर फरमाया कि अगर ये पूरा गांव भी इस कत्ल में शरीक होता मैं सबको कत्ल करवा देता एक मोमिन के कत्ल नाहक के बदले में। इन लोगों ने हल्का समझा हुआ है, भाई बड़ा खतरनाक मामला है। कत्ल नाहक वाला मामला बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हमारे रियासती इदारे भी करते हैं, हमारी मजहबी जमातें भी करती हैं, हमारी सियासी जमातें भी करती हैं, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, सियासत की बुनियाद के ऊपर, फिरकावारियत की बुनियाद के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है और वो कत्ल करके समझता है कि मेरी जन्नत पक्की। आज तक किसी ने लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के अपने मोटर बाइक में कभी तीर लगा के उसे नहीं आग लगाई। लोगों की गाड़ियों को जलाते हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह। यानी नबी इस्लाम का क्या इमेज लोगों के सामने आप पेश कर रहे हैं? फिर आप किस मुंह से इस दीन को अमन का दीन कहेंगे और अपने पैगंबर को रहमतुल आलमीन कहेंगे जब आप इस किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और टोकों के ऊपर लिखा होगा लब्बैक या रसूलुल्लाह, और टोके भी चल रहे मुसलमान होते हैं और मुसलमान भी दूसरे फिरकों के, अपने फिरकों का नहीं। जुनैद जमशेद ने गुस्ताखी की, इनकी बकौल, मैं तो उसे गुस्ताखी नहीं समझता, उस जमाने में मेरी वीडियो आई थी, उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी, देवबंदियों ने माफ कर दिया, बरेलियों ने माफ नहीं किया क्योंकि वो देवबंदी था। कुछ अरसे बाद आमर लियाकत की गुस्ताखी सामने आई, उसने तौबा कर ली, बरेलियों ने कहा तौबा कर ली काफी है, देवबंदी और भाभी अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं वो साड़ी वाली है, अंदरून इसकी थी, तो माशा लगाया भाई यार। और जब हम लोग ये बात करते हैं कहते हैं इंजीनियर साहब जो है वो नॉन मुस्लिम्स का साथ देते हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता, जल्दी मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं, बुजुर्गाने दीन के खिलाफ नहीं बोलता, बुजुर्गाने बेदीन के खिलाफ बोलता हूं, उलमाए किराम के खिलाफ नहीं बोलता, उलमाए क्राइम के खिलाफ बोलता हूं। और ये इंशाल्लाह मैं बोलता रहूंगा क्योंकि ये आपके ऊपर जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश मुसल्लत हुई है ना, ये आपके बुजुर्गों की हरकतों की वजह से हुई है। हाँ, और ये टलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला जब कोई बला छोड़ता है ना, हाँ, वो फिर अगले मुका के पीछे टल दिया है, ज़हन रखना। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बापे थे शायद कोई नहीं। एंड पे मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा अपने ताकतवर हलकों से, रियासती इदारों से, पॉलिटिकल लीडर से कि खुदा का नाम लें और ये 27वीं आईनी तरमीम में 295C 298A के अंदर तौबा की शेख शामिल करें और ये जो मैंने सारी गुफ्तगू की है इसकी बुनियाद के ऊपर कोई काउंटर नैरेटिव लॉन्च करें। अदरवाइज खाली कानून बनाने से, सजाएं देने से मामला हल नहीं होगा जब तक इनकी ज़हनी तत्हीर आप नहीं करेंगे। हम तो कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन आप लोगों ने भी मुस्तकबिल में भी पक्की तौबा करनी है कि अपने मुखालफिन को दबाने की खातिर इन दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल नहीं करना और इनके जरिए तौहीन मज़हब का इल्जाम नहीं लगवाना। अगर आप ये हरकत करेंगे तो ठीक है, आज मौलवियों की भी शामत आ गई है, कल को आपके घर भी आग पहुंचेगी, हम फिर भी उस वक्त भी वही बात करेंगे जो आज कर रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ साफ साफ बात को पहुंचा देना। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।